Hello children, previous part we have studied about the male and female reproductive organs related with the chapter reproduction. Now the next part, and that is the last part of the chapter, and that is the endocrine system. The endocrine system, which includes different endocrine glands present in our body. Now if you see the word gland, you will know and you will remember that we have salivary gland in our body. In our mouth, just below the tongue, there are glands which secretes the saliva, which is very necessary for the digestion. Now what is this salivary gland or what are these endocrine glands? So children, including this endocrine gland, in our body there are different types of glands. These different types of glands secrete their secretion, they secrete their chemicals which are necessary for the proper healthy growth of our body. So before studying the endocrine glands, we will study about different glands. Some are the gastric glands and some are the endocrine glands. In these glands we have sweat glands. Sweat glands means the glands which secretes the sweat, so that unwanted material from our body comes out in the form of sweat. Salivary glands which secretes saliva, and this saliva is necessary for the softening of the food in our mouth. Gastric glands are there. These gastric glands are necessary, they are important for the digestion of food. Whatever food we eat, that is a complex food, and that should be broken down into simpler and soluble form. So to break down this food into simpler and soluble form is the work of these digestive glands which are present in the different parts of our body. They are known as digestive glands. Apart from these digestive glands, we have these endocrine glands in our body. Now, what is the difference between these glands and endocrine glands? Yes, the lot of differences there between this. All these different glands, apart from endocrine glands, these glands have ducts. They have the ducts. They pour their secretion through the ducts in that particular part of the body where we want the action. So, these glands, these gastric glands, sweat glands, sebaceous glands, salivary glands, they have the ducts. They pour their secretion, they pour their chemicals through ducts in the particular part where it is necessary, where it is needed. But these endocrine glands, they do not have duct. ये कोई डक्ट या इनकी कोई कैपिलरी डक्ट नहीं होती है. दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. So this is the major difference between the digestive glands and the endocrine glands. So whichever digestive glands we have in our body, like salivary gland या pancreatic gland, intestine has some glands. So all these glands pour their secretion through ducts, and the endocrine glands pour their secretion, pour their chemicals directly into the blood. So these endocrine glands are also known as ductless glands. Ductless glands मतलब इनका सिक्रीशन जो है, ये जो भी केमिकल सिक्रीट करते हैं, ये डक्ट के थ्रू नहीं जाता, ये डायरेक्ट जो है कहाँ पर जाता है, ब्लड में जाता है. तो दिस इज द मेन सिस्टम. नाउ दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट in our body, these are ductless glands. These endocrine glands are very necessary for the growth of our body. These glands are present in the different parts of the body. These different glands secretes different chemicals. These chemicals are the messengers for whichever disease the secretion is secreted. For whichever disease the chemical is secreted, it is poured into that particular part of the body, and that part of the body get cured. So these endocrine glands, they secrete their chemicals, they secrete the hormones, chemicals which are necessary for the proper growth of the body. So these different types of endocrine glands are present in our body. They are present at different places in our body. Here I have drawn the picture. So you can see very easily the different glands, different endocrine glands. These endocrine glands, in this, number 1 is pituitary gland. Pituitary gland, then parathyroid, thyroid gland, pancreatic
Then adrenal gland, ovary and testis, that is these are the male and female reproductive organs, and the glands are present near these reproductive organs which help in the secretion of the different chemicals which are necessary for the development of puberty or development of the secondary sexual characters. So these different glands, that is endocrine glands, are present. Now you very well know by the diagram that they are present at different places. This is our skull part, brain. ब्रेन के यहाँ पर जो ग्लैंड होती है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. फिर आप थोड़ा यदि नीचे जाते हैं तो हमारा जो लंग्स वाला हिस्सा है, जहाँ से हमारा विंड पाइप शुरू होता है, लीरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, वहाँ पर जो ग्लैंड्स होती है दैट इज द थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होती है. थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स इट्स ओन सिक्रेशन, पैराथायराइड उसका सिक्रेशन होता है. सो दीज आर प्रेजेंट हियर. देन इफ यू लिटिल कम डाउन यू विल सी द स्टमक पार्ट. Just below the stomach, esophagus, you can see the pancreas, and in their pancreas leaf-like structure one gland is present, that is the pancreatic gland. This also secretes its chemical. Then just you move downward, then two pair of kidneys present on both the side, and this pair of kidney, bean-shaped kidney, on the surface, upper surface of this kidney, the adrenal gland, that is adrenal gland is present. Now if you move downward, then the male and female reproductive organs. In female, ovaries are present. So these two ovaries have its own glands which secrete the different secretion which are necessary for the growth of that woman, growth of secondary sexual characters, and later on again at the time of pregnancy or whatever is needed related with that reproductive organ, that gland secretes that secretion, that chemicals. And in male reproductive organ testis, near the testis there are endocrine glands which are responsible for the secondary sexual character in the males. At the same time, the hormones and chemicals which are necessary for the proper growth of that male, these glands are there which helps in the growth of the body. So now through this diagram you can easily see the different places where these endocrine glands are present. Again I will remind you, these endocrine glands are the ductless glands. They do not have duct. Whatever they secrete, whatever chemical is secreted by them, it is directly poured into the blood. This is the major difference between these endocrine glands and digestive glands. So these different glands, endocrine glands which are present at different places, they have their own function. इनका अपना एक अलग काम है. पैराथायराइड ग्लैंड जो है या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये जो केमिकल सिक्रीट करेगी वो और किसी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट नहीं होगा. उसका अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसका अपना पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर है विच इज नेसेसरी. दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ द ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन. जैसे हम बोलते हैं कि किसी इंसान की यदि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई है, हम बोलते हैं कि इसका विकास ठीक से नहीं हुआ है, इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है. तो डेवलपमेंट यदि अच्छे से नहीं हुआ है, मतलब फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट यदि किसी इंसान का ठीक से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस ग्लैंड, because it secretes the hormone which is necessary for the growth. It regulates the growth of the body. पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड secretes the thyroxine. जो केमिकल सिक्रीट होता है, जो हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज द थायरोक्सिन. थायराइड थायरोक्सिन, पैराथायराइड पैराथायरोक्सिन, their chemicals name is. Then pancreatic glands secretes that insulin is necessary. आपने इंसुलिन का नाम बहुत सुना होगा. डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं, कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है, वो शुगर का लेवल बना रहे, वो शुगर जो है शुड कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, उसके लिए हमारी बॉडी में इसका होना बहुत ज़रूरी है. फिर एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के वहाँ पर ऊपर रहती है, अगेन इट इज़ द which is necessary for the heart beat, respiration, blood pressure. प्रॉपर हमारा हार्ट का वर्किंग हो रहा है नहीं, हार्ट बीट जितनी होना चाहिए उतनी प्रॉपर है या नहीं. रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन का जो रेट है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग गैसेस, इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेलिंग, दैट इज गोइंग ऑन प्रॉपरली और नॉट. एंड द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब वेदर द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज रीचिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द
body through the vessels, blood vessels. So that blood pressure, all these things are seen by this adrenal gland. Then this ovary in female, which is responsible for the female reproductive organs, development of the female reproductive organs at the age of 14, at the age of puberty, at the onset of puberty, whatever changes are necessary in the body of a female or in the body of a male, everything depends on the chemical which are secreted by the glands present over this ovary and testis. So all this character can be seen at the time of puberty. This is all because of the chemicals which are secreted by the glands which are present in ovary and testis. Then this ovary, we have studied in previous chapter कि after the fertilization of ovum and sperm in the fallopian tube, the new cell form which is known as zygote. This zygote is responsible for giving birth to the new offspring, for the growth of the new offspring in the womb of the mother. So that time whatever chemicals are necessary for the development of the child and the hormones needed for that, everything is secreted by this. Now here this testis secreted the hormone testosterone. Ovary, the gland present over the ovary, that secretes the hormone estrogen. At the same time progesterone is also secreted. So these different endocrine glands secretes different secretion, different hormones which are necessary for the proper growth and development of the body. Now children, just you see this diagram, I will tell you again one by one the functions of these endocrine glands. So in these functions of endocrine glands, pituitary glands which is present at the base of the brain, जो कि ब्रेन के बेस के वहाँ पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन. इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड अल्सो द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब ये खुद जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है. बॉडी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी जो है इसके कारण होता है. एट द सेम टाइम दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की भी वर्किंग जो है इट कंट्रोल्स. मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसके खुद का हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ दिस डिफरेंट ग्लैंड्स. तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शनिंग और ग्रोथ हार्मोन को ये सिक्रेट करती है. उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो कि फेरिंग्स के वहाँ पर होती है थायराइड, और इसी के वहाँ पर पैराथायराइड भी होती है. दिस थायराइड ग्लैंड which secretes the thyroxine. It controls the activities of the body including rate at which energy is produced. कितनी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है which is necessary for the working functioning of the body, that is done by this thyroid. और just behind the thyroid there is present the parathyroid, and this parathyroid again it controls the balance of calcium in our body. हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसके बैलेंस को, कैल्शियम हमारी बॉडी में हमें बहुत ज़रूरी है, हमारी बोन्स जो बनती है उसके कारण होती है ना. तो ये इसका बैलेंस बनाए रखना ये काम किसका है? पैराथायराइड का है. उसके बाद में जो ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स, 2 ग्लैंड्स अटैच टू ईच किडनी. किडनी के यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती है यहाँ पर, दिस ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट नियर द किडनी, दे रेगुलेट द हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. हार्ट बीट, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, then respiration and blood pressure, it is seen by the adrenal gland which is present over the kidneys, pair of kidneys. After that pancreas below the stomach, स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज, वहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है. ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो सिक्रीट करती है, जो हार्मोन सिक्रीट करती है, जो केमिकल सिक्रीट करती है, दिस पेनक्रियाटिक ग्लैंड विच सिक्रीट्स द हार्मोन कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. हमने सुना है शुगर लेवल बढ़ गया है. डायबिटीज़ वाले पेशेंट बोलते हैं बाप रे खाने के बाद की शुगर बढ़ गई है, खाने के पहले की शुगर बढ़ी है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है. तो ये जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है मतलब कि हमारी बॉडी में हम लोग जब खाना खाते हैं, जब उसका डाइजेशन पूरा हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च. उसके बाद में इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, और ये हमारे वहाँ पर लीवर में जाकर इकट्ठा होता है. जब इसका कन्वर्शन ग्लाइकोजन में नहीं होता है तो ये शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है. और यदि शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा देन वी विल सफ़र फ्रॉम द डिसीज रिलेटेड विद द शुगर.
तो यहाँ पर ये जो इंसुलिन जो सिक्रीट होता है यहाँ पर, इट रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड. Then the upper part, the lower part we have, in male we have testis, in female we have ovary. So this ovary and testis, they have the glands which secretes the hormones which regulates the control of the male reproductive, female reproductive organ, development of the secondary sexual characters. At the same time, in female it also helps in the secretion of estrogen and then progesterone, which is very necessary at the time of delivery for a woman. So this is all about the endocrine glands which are present in our body and their functioning of the endocrine gland. So this is about the endocrine gland. Children, you please study the names of these different glands. Just you study in which part of our body these endocrine glands are present and what are their different functions. So that you have to study it very well. So names and their functions you have to study. So children, now the next part is sex determination. Sex determination matlab the offsprings produced by women or the birth given by the woman, a child, a baby which is taken birth, whether that baby will be a male or female. So who decides that? In which conditions, on which condition it is depend कि whether the child taking birth will be a male or a female. अब इस बारे में आपने कई सारी बातें सुनी हैं, पुराने ज़माने के लोगों को भी सुना है कि जनरली लोगों को जब लड़का होता है तब उनको बड़ी खुशी होती है कि वाह लड़का हो गया, हमारे कुल का नाम आगे बढ़ाएगा, हमारे कुल को आगे लेकर जाएगा, हमारे घर का दीपक है, हमारे घर का चिराग है. और यदि लड़की होती है तो ऐसा लगता है अरे कहाँ लड़की हो गई है, इसको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाया तो भी इसको शादी करना पड़ेगी, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाएगा. तो इस तरीके की भावनाएं, धारणाएं पहले पुराने लोगों की हुआ करती थी. और फिर अल्टीमेटली क्या होता था कि यदि लड़की हुई है तो भी दोष किसका है? लेडीज़ का है. इसको लड़की हो गई, हमेशा इसको लड़की ही होती है, इसको लड़का नहीं हुआ. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का हुआ तो परिवार का कुल दीपक है, वाह हमारे लड़के को लड़का हुआ. और यदि लड़की हुई तो ये हमारी बहू ही ऐसी है कि इसको लड़की ही हुई है. मतलब सारा दोष किसके ऊपर डाल दिया जाता था? फीमेल के ऊपर. जैसे कोई वो फीमेल के हाथ में है कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी. इफ़ यू स्टडी द साइंस एट दिस स्मॉल लेवल ऑल्सो, यू विल very easily come to know how the baby grows and on which condition the sex of a baby depends. लड़का होता है या लड़की होती है तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? क्या किसी लेडीज़ के ऊपर ये थोपना कि तुम्हारे कारण लड़की हुई, ये किस हद तक सही है? यदि हमने साइंस थोड़ा सा भी पढ़ा है या तो इन्हें थोड़ा सा भी यदि हमें जानकारी है तो हम कभी भी उस महिला के ऊपर इस चीज़ का आरोप नहीं लगाएंगे कि तुम्हारे कारण लड़की हुई, तुम्हारे कारण लड़का हुआ. बिकॉज वी नो दैट जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर एक्स एंड वाई, और फीमेल में जो है एक्स एक्स होते हैं. एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर baby girl, XY is responsible for a baby boy. अब देखिए यदि मेल के सेक्स ऑर्गन्स में जो क्रोमोसोम्स है वो XY है तो XY से यदि स्पर्म्स, XY हैविंग स्पर्म्स जो है वो X और यदि Y है तो X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी गर्ल एंड Y इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉय. X is responsible for the girl and Y is responsible for the boy. Now female has XX chromosome. अब ये XX क्रोमोसोम में हमको पता है कि X is responsible for the girl, baby girl. अब सोचिए जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फ्यूज़न होता है, गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो यहाँ से यदि मेल साइड से X क्रोमोसोम यदि फीमेल के X के साथ फ्यूज़ होता है तो जो भी
जाइगोट बनेगा, इट विल डेवलप इनटू ए बेबी बॉय X and Y, and if X is fuses with X then it will develop into XX, that is the baby girl. मतलब यदि फ्यूज़न X और X क्रोमोसोम का हुआ तो जो बनेगा वो क्या होगा, गर्ल, बेबी गर्ल, लड़की होगी. और यदि X और Y का फ्यूज़न हुआ तो जो बनेगा वो कौन होगा, वो लड़का होगा, दैट विल बी ए बेबी बॉय. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि लेडीज़ फीमेल में तो XX क्रोमोसोम ही है, X और Y दो अलग अलग किसके पास में है, मेल के पास में. यदि मेल के जो क्रोमोसोम है उसमें से X के साथ X का फ्यूज़न होगा तो XX लड़की होगी, और यदि Y के साथ में फ्यूज़न Y के साथ में X का फ्यूज़न हुआ तो XY मतलब लड़का होगा. मतलब लड़का या लड़की होना ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन मेल. पर आज तक हमारे यहाँ पर ये सारा जो है पूरा लेडीज़ के ऊपर डाल दिया जाता है कि इनके इसके कारण ऐसा हुआ. दिस इज़ नॉट ट्रू. बायोलॉजिकली इफ वी सी, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मेल ओनली, बिकॉज फीमेल हैज़ XX क्रोमोसोम. सो इफ दैट X गेट फ्यूजेस विद द X, surely baby girl will be there, and if X is fuses with Y then there will be a boy. So determination of the sex कौन सा होगा, it everything depend on the male, doesn't depend on the female. अब जब भी ऐसा होता है पुराने ज़माने में, अब तो बहुत कम हो गया है, अब तो गवर्नमेंट में भी उसके ऊपर बैन लगा दिए हैं कि आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. आप जो है हॉस्पिटल में जाकर ये चेक नहीं करवा सकते हैं कि आपको होने वाला जो बच्चा है वो फीमेल है या मेल है, लड़का है या लड़की है. इसके ऊपर तो अब आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है और इंसान को जेल भी हो सकती है. इसलिए किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप जाएंगे तो वो इस प्रकार का कोई टेस्ट नहीं करेंगे जिससे आपको ये पता चले कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है. पहले, इससे कुछ समय पहले ऐसा होता था, कुछ लोग जो चाहते थे कि नहीं हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको तो लड़का ही चाहिए, हमारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए हमें तो लड़का चाहिए, हमारी इतनी सारी संपत्ति है, उसका वारिस कौन रहेगा, हमको वारिस चाहिए, हमको तो लड़का चाहिए. तो वो लोग जो है हॉस्पिटल में जाकर सेक्स डिटरमाइन करते थे कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है. और फिर यदि उन्हें ऐसा पता चलता था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से या अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड लेके या सोनोग्राफी करके ये चीज़ें पता चल सकती है कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है. तो उस केस में जब लोग ऐसा करते थे और यदि उन्हें पता चल जाता था टेस्ट से कि होने वाला बच्चा जो है फीमेल है, लड़की है, तो वहीं पर उस गर्भ में ही उसको इस प्रकार से मेडिसिन दी जाती थी कि वो बच्चा जो है अंदर ही मर जाए, मतलब लड़की का जन्म ही ना हो. पर मुझे आप ये बताइए कि इफ़ द फीमेल इज़ नॉट देयर, हु विल गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. यदि आपको लड़का भी चाहिए तो उस लड़की को भी जन्म देने के लिए तो महिला ही लगेगी ना, लेडीज़ ही लगेगी ना. तो हम ऐसे कैसे कर सकते, पर ऐसा होता था और ऐसा कई बार हुआ है. लोगों ने ऐसा किया है कि मेडिसिन्स देकर, यदि द वूम ऑफ द मदर इफ़ द बेबी गर्ल इज़ देयर, यदि लड़की है तो उसको इंजेक्शन देकर, मेडिसिन देकर उसको वहीं पर मार दिया जाता था. और किलिंग ऑफ द फीटस, मदर के वूम के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको फीटस बोलते हैं. तो उस फीटस को मार देना, उस गर्भ को मार देना, उसको बोलते हैं फिटिसाइड्स, इसको बोलते हैं फिटिसाइड्स. तो इसको जो है दवाइयाँ देकर, इंजेक्शन देकर उसको वहीं पर गर्भ में ही उसको मार दिया जाता था, जो आज के ज़माने में, आज के इसमें वो सारा बैन है. अब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ बाहर एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, और वो बोर्ड जो लगा हुआ रहता है उस बोर्ड के ऊपर ये स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पर ऐसा भ्रूण का टेस्ट नहीं किया जाता, मतलब अंदर जो गर्भ है वो लड़का है या लड़की है, सेक्स डिटरमाइन करने वाला काम यहाँ पर नहीं होता है, उसके ऊपर बैन है. और यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपके खिलाफ जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकता है. तो ये सारा काम आजकल बंद हो गया है, वो सारा काम अब कुछ नहीं होता है. उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है और बहुत सारे नियम हैं, और वो अपराध के रूप में माना जाता है, एक प्रकार से वो अपराध माना जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. अब पहले क्या था, पहले के ज़माने में लड़का है तो उसकी परवरिश अच्छी की जाती थी, उसको खाने पीने के लिए अच्छा सा दिया जाता था, उससे कोई काम नहीं करवाया जाता था, भी ये तो हमारे कुल का दीपक है, ये जो है ये काम क्यों करेगा, मतलब बहुत सारे काम से रेस्ट्रिक्टेड थे, टेबूज.
मतलब कि ये सिर्फ तय था कि लड़की है तो वो घर की झाड़ू लगाएगी, वो घर के बर्तन साफ करेगी, मम्मी को उसके काम में मदद करेगी। स्कूल पढ़ने के लिए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, लड़कियों को पढ़ के क्या करना है। घर का नाम तो है कुलदीपक, लड़का चलाएगा ना, सारी संपत्ति का मालिक तो लड़का है। वो जो कुल का दीपक है वो घर का नाम रोशन करेगा, घर के लोगों का नाम रोशन करेगा। तो उसको पढ़ाया जाता था, उसको स्कूल भेजा जाता था, उसको अच्छा खाना दिया जाता था, वो अच्छा मजबूत रहे, मोटा ताज़ा तगड़ा रहे, अच्छा रहे, इसलिए उसको खाना भी अच्छा दिया जाता था। उसको कभी डांटा नहीं जाता था, उसको किसी काम के लिए कोई रोक नहीं थी। और लड़कियों के लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे। और इवन जो वर्क है वो भी तय था कि लड़की ये काम करेगी और लड़का ये काम करेगा। मम्मी घर की जो लेडीज़ थी उनका भी ये काम था कि वो हमेशा ये देखती थी कि झाड़ू लगाना है, नहीं 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 नहीं, लड़का थोड़ी लगाएगा, वो तो लड़की लगाएगी। मम्मी का हेल्प करने का काम नहीं, वो लड़के का थोड़ी, वो तो लड़की का है। तो इस तरह की परंपराएं पहले थी। तो इसलिए गर्ल्स में वही गुण आते थे कि सेवा करना, किसी का काम करना, किसी को मदद करना, केयरिंग करना, नर्चरिंग करना। तो आगे जाकर लड़की यदि कुछ बाहर जाकर काम भी करती तो उसका प्रोफेशन भी उसी तरह से डिसाइड होता था। और लड़का है तो उसको अच्छा मजबूत बनाया जाता था, खाना पीना उसका इतना अच्छा होता था कि वो शारीरिक रूप से भी फिजिकल भी फिट होता था, मजबूत होता था। तो उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, वो चाहे कुछ भी काम कर सकता है। तो फिर वो आगे जाकर उनके जो फील्ड्स थे, उनके जो वर्किंग फील्ड्स थे, वो भी कोई नेवी में जा रहा है तो कोई आर्मी में जा रहा है, तो कोई जो स्पोर्ट्स में जा रहा है। तो इस तरीके से उनको बढ़ाया ही, उनकी ग्रोथ ही ऐसी, अपब्रिंगिंग ही उनका ऐसा होता था कि वो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही होते थे कि लड़कियां जो उनका प्रोफेशन अलग और लड़कों का प्रोफेशन अलग। आज की स्थिति में आपने देखा है कि ऐसा नहीं है। अब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहां पर लड़कियां नहीं जाती है, जो लड़कियां नहीं कर सकती। ईच एंड एवरीथिंग गर्ल्स आर रेडी टू डू, दे आर रेडी टू डू एंड दे आर गोइंग इन दैट फील्ड। अब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं बची है आज की इसमें कि आपको ये चलेगा कि नहीं यहाँ पर लड़कियाँ तो नहीं है, नहीं, हर प्रोफेशन में आपको लड़की आगे दिखेगी। ये हमारी जो बात करें वो पुरानी बातें थी, आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था। सो चिल्ड्रन, थ्रू दिस चैप्टर यू कैन कम टू नो दिस द मेजर प्रॉब्लम विच वॉज देयर बिफोर, वेरी ईयर्स बिफोर। नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब ऐसा नहीं है। नाउ ईच एंड एवरी फील्ड इफ़ यू ऑब्जर्व यू सी, इवन द गर्ल्स आर ऑल्सो देयर एंड इवन द बॉयज़ आर ऑल्सो देयर। जो हम कहते हैं कि लड़के खाना नहीं बनाएंगे, लड़कों को खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, या लड़कों को किसी की केयर करने की क्या ज़रूरत है, पर आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि लड़के खाना नहीं बनाते थे, वो पहली वाली बात होगी। अब तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी होटल्स में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बॉयज़ शेफ़ दिखेंगे, जेंट्स शेफ़ दिखेंगे जो कि खाना बनाते हैं। या आप यदि हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो बॉय नर्स होते हैं, वहाँ पर जेंट्स नर्स भी होते हैं जो केयर करते हैं। तो इस तरीके से अब जो है हमारा समय बहुत बदल गया है, इसलिए अब ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सा काम लड़कियां करेंगी या कौन सा काम जेंट्स करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, टेबोज, व्हाट इज फोर्टिसाइड, देन द जेंडर रोल एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ ए गर्ल और ए बॉय। लड़का लड़की होगा, क्या होगा और इसके लिए मेन जिम्मेदार कौन है, दिस इज ऑल अबाउट दिस chapter. So children, please read this chapter. Different parts of this chapter, I have explained the chapter in different parts. You study it well and just go through the chapter 2-3 times. Listen to the audio, see the video, and then you will come to know the major points which are given in this chapter, that is reproduction. So this is all about the chapter reproduction.